آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے ایسے 4 انبیاء ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے۔ لہٰذا ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو پوری دیکھیں۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تعمیر کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر بے شمار لوگوں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک کام کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف تشریف لائے اور دنیا سے واپس تشریف لے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا پورا نام لکھیں تاکہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 انبیاء کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستو، پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لیکن جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور آپ پر طعن و تشنیع کرتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت میں بیٹھے رہیں گے، ایک دن آپ نے سبھی یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور کہا کہ ہم مسلمان ہوں گے اور یہ یقین دلایا کہ آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین کا پیغام دینے سے روک دیا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیہ نامی شخص کو مقرر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 7 آسمانوں کی طرف لے آیا۔
जब आप आसमानों पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने अपनी वालिदा से फरमाया कि ए अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको आसमान पर ले गए और उधर यहूदी बाहर खड़े उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिसको उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तोतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुआज़ल्लाह कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर हो गई लेकिन वो शख्स ना आया तो उस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर गए कि देखें कि आखिर क्या माजरा है। तो उन्होंने वहां एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता था। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है लेकिन ये तो हमारा भेजा हुआ शख्स है जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था, ये मौजज़ा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों के अंदर तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में ही लड़ने और झगड़ने लगे। इस लड़ाई के अंदर बहुत सारे यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन निसा में फरमाता है, और उनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला था कि उन्होंने उनको कत्ल न किया और न ही उन्हें सूली चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शिकल बना दिया था। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो बेशक गफलत में पड़े हुए हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और यकीनन कत्ल नहीं किए गए। अल्लाह तबारक व तआला गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबवी है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर तशरीफ लाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा फरमाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 बरस तक इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को आम करेंगे और आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खिजरा में दफन कर दिया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या सूली लटका दिए गए, वो दायरे इस्लाम से खारिज है और वो कुफ्र कर रहे हैं। तो फिर बात करते हैं दूसरे नबी की जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाई हुई है, वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जाहिरी तौर पर इस दुनिया में उस वक्त तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर दाखिल हो चुका होगा और इस दुनिया के अंदर अपना फितना फसाद फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन से दूर करेगा। उस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह ताला के दीन का हुक्म देंगे और उनको अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए जहां उनको कोई भी न ढूंढ सका और वहां इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। इसी दौरान आपका गुजर आब हयात के चश्मे से हुआ। इससे पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए और आपके ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रिवायात में मिलता है। इस तरह के हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होते हुए हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर के पास आके रुक गए। उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। उसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था, तो उस वक्त तो मजमे में मौजूद कोई भी शख्स उस शख्स के बारे में इल्म नहीं रखता था। तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, मैं इस शख्स को जानता हूँ कि ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है।
हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान है। और बाज रिवायात के अंदर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ किसी सफर पर गए और वहां पर आपने आबे हयात पिया, जिसकी वजह से आपको ताहयात जिंदा रहने का मौका मिला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान में मिलता है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। जिस तरह तफसील के साथ बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया, जिस तरह के हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मेरा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी से हुआ। वहां से गुजरते हुए हमें एक आवाज सुनाई दी कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देते। ये आवाज सुनते ही अल्लाह तबारक व ताला के नबी ने मुझे ये हुक्म दिया है कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आवाज का पता लगाओ, ये कौन है। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा और कहा, ए बंदे, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, तो उस वक्त हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। उस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने वापस आकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहां चले गए। जब हम लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उन पर आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत इलियास उस परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए थे। बाज उलमा कराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हर रमजान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं और वहां पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज करते हैं। ये दोनों अंबिया मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा है। वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है, जिनके जिंदा होने की रिवायात भी मिलती है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। फिर शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का जिक्र भी मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो सयाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र में मशगूल रहा करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र बुलंद करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। जमीन पर रहने वाले इंसानों में सबसे ज्यादा नेकियां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की होती और आपकी नेकी अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ शुमार हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था। एक मर्तबा मलिकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है।
चुनाचे आपके कहने पर मलिकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने फरिश्ते से दरखास्त की कि मैं दोज़ख देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख ले जाया गया और वहाँ की सैर करवाई गई। फिर आपने जन्नत की सैर का इरादा फरमाया तो आपको जन्नत की सैर करवाई गई और आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जन्नत देखने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि मैं अब यहीं पर रहना पसंद करूंगा। अल्लाह के फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरफ वापस जाइए। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उस फरिश्ते को हुक्म मिला कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दिया जाए। इस तरह जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का जायका चखा तो अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया कि कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। चुनाचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज कर ली गई तो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील हो गई और फिर दोबारा जिंदा होकर आप जन्नत में दाखिल हो गए और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत में ही ठहरने का इरादा किया, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।